Hello बच्चों, today we are going to study two topics: force between two parallel currents and definition of 1 ampere from chapter 4 moving charges and magnetism. So first of all, I am starting my first topic: force between two parallel currents. We are taking two very long, straight and very thin wires. It is wire 1, it is wire 2. Suppose current flowing through this wire is I1 and current flowing through this wire is I2, and the separation between both of these wires is small d. Then we want to see whether these current carrying wires apply a force on each other or not. Why a single wire should apply a force on other wire? What is it producing? What is it creating? Obviously, a current carrying wire should produce some force because it creates some magnetic field. Suppose this wire, this is creating a magnetic field around it, and this wire may behave as surely it will behave as this wire is placed in external magnetic field, and this wire is also producing a magnetic field around it, and this wire behave as if it is placed in external magnetic field. So a magnetic force will also be produced on it, will also apply on it. So both of the wires will apply a magnetic force on each other. First of all, we should calculate that what is the magnetic field created by both of the wires on each other. Suppose I am going to calculate the magnetic field produced by first wire on this second wire. So what should I do? I should assume a, current, a circular loop for applying Ampere circuital law. I am applying Ampere circuital law, so I am choosing a circular loop centered at first wire. And what should be the radius of this loop? The radius should be small d. And what is the direction of magnetic field at this place? If it is wire and I am holding this wire as the direction of current is matching with the direction of this thumb, then these fingertips are giving the direction of magnetic field. So direction of magnetic field should be inward at this place, and this magnetic field is produced by wire 1 at wire 2. So I am giving it name as B12 because it is produced by wire 1 on wire 2. Okay, now I am going to apply Ampere Maxwell law. Ampere Maxwell नहीं, Ampere circuital law. B vector dot dl vector is equal to म्यू नॉट आई ई. एम्पियर मैक्सवेल लॉ हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए मैक्सवेल ने, कुछ रिक्वायरमेंट थी मॉडिफिकेशन करने की, तब उसके बाद में हमने इसका नया नाम दिया इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ. लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है. अब देखिए सर्कुलर लूप है तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू टू पाई, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई d. मैग्नेटिक फील्ड कितना? B12 इंटू 2 पाई d इज इक्वल टू म्यू नॉट. अब देखिए इस लूप से कितनी करंट फ्लो हो रही है? सारी की सारी करंट लूप से ही पास हो रही है, I1. तो यहाँ हम लेंगे I1. सो what is the expression for B12? It is mu naught I1 upon 2 pi d, right? Similarly, we can derive the expression for B21, means the magnetic field produced by the second wire on first wire in the same way, and we would get mu naught I2 upon 2 pi d. In place of I1, it will become I2. Equation number 2. Now both of the wires are experiencing a magnetic field. They will behave as if they are placed in some external magnetic field. This magnetic field is due to this wire, second wire, and I can show you. Suppose this is wire and I am holding this wire as this thumb is along the current, then tips of the fingers are giving the direction of magnetic field. So magnetic field is coming out and its name is B21, right? Now we want to calculate the magnetic force on L length of the wire. इस सेकेंड वायर के L लेंथ पर हम
फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, कितना फोर्स होगा, इसको कैपिटल एल मैंने चूज कर लिया, ठीक। So now we can use the expression for magnetic force on current carrying straight conductor placed in magnetic field. Now force on L length of second wire, right? So what should be the symbol? Force on second wire due to wire 1. So I am giving it the name F21, and it will become F21 is equal to Bil sin theta, BIL sin theta. तो B कितना है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड है B12, तो मैं इसको लिखूंगा B12। करंट कितनी फ्लो हो रही है इस वायर में, I2, मैं लिखूंगा I2। लेंथ L, थीटा कितना मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो थीटा should be 90 degree. What is the value of sin 90 degree? Sin 90 degree is equal to +1, right? So we should place the values of B12. Value of B12 is in equation 1, mu naught I1 upon 2 pi d into I2 into L. So this is the final expression. And what should be the direction of this force? The direction of force, how can we find direction of the force? Direction of force we can find by using Fleming's left hand rule. It should be placed along the first finger should be placed along the feed is inward, and this center finger should be placed along the current, so current is going right side, and the direction of thumb is giving the direction of force. So the direction of force F21 should be upward direction towards the first wire, right? And what should be the force? Similarly, force on L length of फर्स्ट वायर की एल लेंथ पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं आप। सो फोर्स के लिए फॉर्मूला, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू वायर 2 F12 इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वायर पर फाइंड कर रहे हैं हम फोर्स, फर्स्ट वायर कितने फीड में रखा है, फर्स्ट वायर पर फीड कितना B21, तो B21 फर्स्ट वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है I1, लेंथ L, और थीटा कितना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल एंड करंट इज फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस वे द एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो एंगल इज 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, +1, है ना। So now I am going to place the value of B21. The value of B21 is in equation number 2. B21 mu naught I2 upon 2 pi d into I1 into L. So this is the expression of force F12. Now what should be the direction of this force? We can use Fleming's left hand rule. This finger should be placed in vertical direction and it is along the current, and direction of thumb is giving the direction of force and it is F12. तो वेक्टर यूज करना चाहिए हमें। अब देख रहे हैं दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक और फैक्ट हमें याद रखना है, क्या, कि दोनों वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों फोर्सेस F12 और F21 बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। आप देखिए म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, दोनों वायर्स एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करके इस टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक में भी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, किसी एक वायर में डायरेक्शन रिवर्स करने पर, देखिए हमने मान लिया एक वायर में करंट इधर जा रही है I1 और दूसरे वायर में करंट जा रही है बच्चों इधर I2। अब देखिए जरा ये वायर यहाँ किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, इसी वाले रूल से देखिए, ये हमने मान लिया वायर में करंट जा रही है, इसी वाले रूल से देखें तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये क्या है B12। अब ऐसे ही ये वाला वायर यहाँ किधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, देखो पेन हमने इधर रखा, हमको इधर रखते हुए रैप करना, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड B12 वेक्टर B12 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स, ये फीड के लॉन्ग रखना है हमें, करंट
करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये आ गई, तो फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 F12 वेक्टर, ठीक है। इस पर किधर फोर्स लगेगा? इस पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो इस पर भी फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, F21 वेक्टर। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या क्या कंडीशन बनेगी, बोथ वायर्स आर रिपेलिंग ईच अदर बाय सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कितने फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का? F12 या F21? हमें देखने को मिला दोनों ही फोर्सेस बिल्कुल सेम है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। डी दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, I1 I2 करंट्स है, L लेंथ ऑफ द वायर है। तो दोनों वायर्स एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हुए एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। एक चीज जो नोट की है, हम देख रहे हैं कि लाइक करंट्स, देखो लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक करंट्स का मतलब है सेम डायरेक्शन में जाने वाली करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा, या आप कह सकते हैं अनलाइक करंट्स। अब देखिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये रिपेल करते हैं, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करती हैं बच्चों अनलाइक करंट, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है फोर्स के लिए बच्चों, ये हिस्टोरिकल एक एक्सप्रेशन है। 1946 में यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया था, एज बेस यूनिट एम्पियर को सेलेक्ट किया गया था। अब देखिए एम्पियर को हमने कैसे डिफाइन किया, इसकी हेल्प से। फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी अगर हम पुट कर दें, देखो I1 इज इक्वल टू, अच्छा मैं हेडिंग डालता हूँ, डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, करंट नहीं एम्पियर। अगर हम पुट करें बच्चों इस वाले एक्सप्रेशन में, I1 और I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर लें और वायर्स की 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स फाइंड करें, और दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की ही डिस्टेंस पर रख दिया गया। बहुत लंबे और बहुत पतले, बहुत कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर्स हैं। तब देखिए फोर्स कितना आएगा। तो फोर्स के लिए दोनों F12 F21 दोनों के लिए F यूज कर रहा हूं मैं एक्सप्रेशन सिंबल, तो क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितनी वैल्यू होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आप दोनों साइड 2 से इंटू कर दो, ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻7, इतने न्यूटन पर मीटर का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, 1 मीटर लेंथ पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो यहीं से हमने डेफिनेशन बनाई करंट की, और बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछी जाती है कि 1 एम्पियर इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन two very long, straight, and very thin wires placed in vacuum, they attract or repel to each other by the force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दो बहुत लंबे लंबे पतले वायर्स अगर वैक्यूम में रख दिए जाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, और उनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो की जाए अगर, तो एक दूसरे को इतने वायर इतने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। देखें क्या डेफिनेशन है, मैं इधर लिख देता हूँ नए पेज पर, definition of 1 ampere. If 1 ampere is that value of steady current, that value of steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section, negligible cross section, and placed 1 meter apart, and placed 1 meter apart in vacuum
V in vacuum would produce on each of these conductors force equal to 2 into 10 की power -7 Newton per meter of length। बच्चों ये डेफिनेशन 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, अक्सर पूछी जाती है, 1 मार्क में आती है, याद कर लेना इसको। और देखिए इसके बेसिस पर ही फिर 1 कूलाम की भी डेफिनेशन दी गई। देखो 1 कूलाम की डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन a steady current of 1 ampere, when a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second is 1 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम की भी 1 कूलाम कितना चार्ज होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जहाँ पर फोर्स के रेस्पेक्ट में हमने 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन दी थी, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं करंट के रेस्पेक्ट में 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर रोकते हैं लेक्चर। थैंक यू।